या 4 सड़क पर ऊंट और दूसरे जानवर। देही इलाकों में जानवर एक मुस्तकिल खतरा हैं। ज्यादातर मरकजी शाहराहों पर बाड़ लगा दी गई है ताकि ऊंटों को शाहराहों पर घूमने से रोका जा सके और खास तौर पर रात के वक्त हादिसात का बायस बने। ताहम कुछ देही इलाकों में ऊंट अब भी सड़क पर भटकने का इंतजाम करते हैं। ये दूसरे ड्राइवरों के लिए एक खुशानद बात है कि वो अपनी हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर मवेशियों के बारे में खबरदार करें। ये चलती गाड़ी में खतरे की रोशनी के चंद काबिल कबूल इस्तेमालों में से एक है। जब आप सड़क पर ऊंट, भीड़, बकरी या गाय देखें तो फौरन रेंगने वाली रफ्तार को कम करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू करें। जानवरों को उनके पेश आने वाले खतरे या चलती गाड़ी से टकराने के खतरे का कोई एहसास नहीं होता, इसलिए सब्र करें और खतरे से एहतियात और महफूज तरीके से बातचीत करें। याद रखें, जब आप ऊंट की वार्निंग का निशान देखें तो हमेशा सड़क के किनारों पर नजर रखें और रफ्तार कम करें। तवज्जो का फुकदान, तेज रफ्तारी, जानवरों के हादिसात की वजूहात बहुत सी और मुतनव्वे हैं। एक ऊंट आसानी से सड़क पर निकल सकता है और बेखबर ड्राइवर से टकरा सकता है। अपने नुक्ता नजर के मैदान को वसी रखें और एक मुस्तहकम, सुस्त रफ्तार को बरकरार रखें। तसादुम से बचने के लिए सड़क पर भटकने वाले ऊंट के पीछे रहिए। सुबह और शाम वो औकात होते हैं जब जानवर सबसे कम नजर आते हैं और सड़क पर भटकने का ज्यादा इम्कान होता है। यहाँ तक कि अगर सड़क के किनारे हिफाजती बाड़ या रुकावट मौजूद है, तब भी ऊंट किसी वक्फे से अपना रास्ता तलाश कर सकते हैं। जहाँ बाड़ खत्म होती है, वहाँ मवेशियों के सड़क पर आने का हकीकी खतरा होता है। सड़क पर छोटे जानवर शदीद हादिसात का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर अक्सर घबराहट में ब्रेकों पर हद से ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। अपने आप को या दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों को जख्मी करने से बचने के लिए कभी कभार भागना जरूरी हो सकता है। जानवरों के हादिसात की मुमकिना वजूहात दर्ज झेल हैं। ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर के मुशाहदे की हद बहुत तंग थी। ड्राइवर ने इंतबाही निशान को नजरअंदाज किया। ड्राइवर को मालूम नहीं था कि वो कब सड़क पर जानवरों की तलाश की तवक्को कर सकता है। Or camels and other animals on the road. Animals are a constant hazard in rural areas. Most of the main highways have been fenced off to prevent camels from wandering onto the highways and causing accidents, especially at night. However, in some rural areas camels still manage to stray onto the road. It is a courtesy to other drivers to warn them of livestock on the road by using your hazard lights. This is one of the few acceptable uses of hazard lights in a moving vehicle. When you see camels, sheep, goats or cows on the road, slow down right away to a crawling speed and then slowly resume moving forward. Animals have no sense of the danger they present or of the risk of being hit by a moving vehicle, so be patient and negotiate the hazard carefully and safely. Remember, when you see the camel warning sign, always watch the sides of the road and slow down. Lack of attention, high speed. The causes of accidents involving animals are many and varied. A camel can easily rush out onto the road and collide with an unwary driver. Keep your field of vision broad and maintain a steady, slow pace. To avoid a collision, stay behind a camel that has wandered onto the road. Dawn and dusk are the times when animals are the least visible and most likely to stray onto the road. Even if there is a protective fence or barrier along the side of the road, camels may still find their way through a gap. Where the fence ends, there is a real danger of livestock finding their way onto the road. Small animals on the road can cause severe accidents, since drivers often overreact and slam on the brakes in a panic. To avoid injuring yourself or other road users, it may occasionally be necessary to run over. Probable causes of accidents involving animals are as follows. The driver was driving too fast. The driver's range of observation was too narrow. The driver neglected a warning sign. The driver did not know when she could expect to find animals on the road. How to avoid critical situations. 51. Here are some ways of reducing the chances of finding yourself in a critical situation. Always maintain good vision to the front and all around your vehicle. Look out for braking lights on vehicles directly in front of you and on vehicles even further ahead. Vehicle in front of you. Be alert and ready to respond to the unexpected. Be secure in your mind by wearing your seatbelt. Regularly check your rear view and wing mirrors. Watch out for people crossing the road at official crossing places and when driving by schools, shopping areas and other public gathering areas. Maintain the proper distance from the keep to your lane, except when overtaking, and do not weave from lane to lane. On long journeys, take a break every now and then to get out and stretch your legs. Do not look at maps or eat food while driving. Stop at a lay-by and continue later.
Many drivers do not approach driving as a serious exercise, as one that could result in getting someone gravely injured or even killed due to a lapse of concentration or a failure of driving technique. It takes only a fraction of a second. नाजुक हालात से कैसे बचें? 51 अपने आप को नाजुक सूरत-ए-हाल में ढूंढने के इम्कानात को कम करने के कुछ तरीके ये हैं। अपनी गाड़ी के सामने और चारों तरफ हमेशा अच्छी नजर रखें। बराह रास्त अपने सामने वाली गाड़ियों पर और इससे भी आगे की गाड़ियों पर ब्रेक लगाने वाली लाइट्स को देखें। आपके सामने गाड़ी, होशियार रहीं और गैर मुतवक्के जवाब देने के लिए तैयार रहीं। अपनी सीट बेल्ट पहनकर अपने जहन में महफूज रहीं। अपने पीछे का मंजर और बाजू के आईने को बाकायदगी से चेक करें। सरकारी क्रॉसिंग की जगहों पर सड़क पार करने वाले लोगों और स्कूलों, शॉपिंग एरियाज और दीगर अवामी इज्तिमा की जगहों से गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखें। से मुनासिब फासला बरकरार रखें। अपनी लेन पर रहीं, सिवाय ओवरटेकन के, और लेन से दूसरी लेन तक न बने। लंबे सफर पर बाहर निकलने और अपनी टांगें फैलाने के लिए वक्तन फवक्तन वक्फा करें। ड्राइविंग के दौरान नक्शे न देखें और न ही खाना खाएं। एक लेट पर रुकें और बाद में जारी रखें। बहुत से ड्राइवर एक संगीन मश्क के तौर पर ड्राइविंग के करीब नहीं जाते हैं, जिसके नतीजे में किसी को शदीद जख्मी हो सकता है या इर्तिकाज में कमी या ड्राइविंग की तकनीक की नाकामी की वजह से मौत वाक़ई हो सकती है। चीजों को गलत 51 किसी गंभीर स्थिति में फंसने की संभावना को कम करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। अपने वाहन के सामने और चारों ओर हमेशा उचित दृष्टि बनाए रखें। अपने ठीक सामने वाले वाहनों पर और उससे भी आगे वाले वाहनों पर ब्रेकिंग लाइट का ध्यान रखें। आपके सामने वाहन, सतर्क रहें और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहें। अपनी सीट बेल्ट पहनकर अपने मन को सुरक्षित रखें। अपने रियर व्यू और विंग मिरर की नियमित जांच करें। आधिकारिक क्रॉसिंग स्थानों पर सड़क पार करने वाले लोगों और स्कूलों, खरीदारी क्षेत्रों और अन्य सार्वजनिक सभा क्षेत्रों में वाहन चलाते समय सावधान रहें। से उचित दूरी बनाए रखें। ओवरटेक करने को छोड़कर अपनी लेन पर बने रहें और एक लेन से दूसरी लेन में न जाएं। लंबी यात्राओं पर बाहर निकलने और अपने पैरों को फैलाने के लिए समय समय पर ब्रेक लें। गाड़ी चलाते समय न तो नक्शा देखें और न ही खाना खाएं। थोड़ी देर रुकें और बाद में जारी रखें। कई ड्राइवर ड्राइविंग को एक गंभीर अभ्यास के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि एकाग्रता में कमी या ड्राइविंग तकनीक की विफलता के कारण कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकता है या यहां तक कि उसकी यातायात वातावरण की ओर 51 अबू धाबी की सड़कों पर यातायात सुरक्षा के लिए हमारा दृष्टिकोण लगभग दुर्घटना मुक्त यातायात वातावरण है। एक ऐसा वातावरण जहां यातायात दुर्घटना में कोई भी नहीं मारा जाता है या गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। हम अब इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि सड़क पर एक साधारण गलती के परिणामस्वरूप लोगों को हर साल मौत या आजीवन पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि हर कोई कभी न कभी गलती करता है, इसलिए यातायात दुर्घटनाओं को पूरी तरह खत्म करना असंभव होगा। हालांकि सुरक्षित सड़कों, सुरक्षित वाहनों और बेहतर सड़क व्यवहार के माध्यम से टकराव के परिणामों को कम करना संभव होना चाहिए। इस बीच हम यातायात दुर्घटनाओं को रोकने में बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और बेहतर सड़क व्यवहार अपनाकर जोखिम कम करना, जो कि सभी में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात के लिए सामान्य तौर पर एक सुरक्षित यातायात वातावरण, जिससे दुर्घटना मुक्त वातावरण बनाने में सफल होने के लिए इन तीनों घटकों की आवश्यकता है। यदि कोई गायब है तो सिस्टम विफल हो जाएगा। बेहतर सड़क व्यवहार। ड्राइविंग शिक्षा आपको ड्राइविंग का ज्ञान देगी और सड़क पर आपके व्यवहार और ड्राइविंग कौशल में सुधार करेगी। सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित वाहन। यदि आपका वाहन खराब हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? वाहन को रास्ते से हटा दें ताकि यह अन्य वाहनों के लिए खतरे का कारण न बने। अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए हैजर्ड लाइट चालू करें। सभी यात्रियों को वाहन से बाहर निकालें और सड़क से पर्याप्त दूरी पर रोकें और सड़क पर सुरक्षा बाधाओं के पीछे खड़े होना पसंद करें। यदि क्षेत्र में अंधेरा है तो पार्किंग लाइटें चालू करें। सड़क सेवा गश्ती के लिए 999 पर कॉल करें। गंभीर स्थिति 5.6 Towards an accident-free traffic environment. 51 An almost accident-free traffic environment is our vision for traffic safety on Abu Dhabi's roads, an environment where nobody gets killed or seriously injured in a traffic accident. We can no longer accept the fact that people are being punished every year by death or lifelong suffering as a result of a simple mistake on the road. Since everyone makes a mistake at some time or another, it will be impossible to completely eliminate traffic accidents. However, it should be possible to minimize the consequences of a collision through safer roads, safer vehicles and better road behavior. For the meantime, we can make a major impact in preventing traffic accidents and reducing risk by exercising better road behavior, the most important component of all.
For Abu Dhabi and the UAE in general to succeed in creating a safer traffic environment, thereby an accident-free environment, all three of these components are needed. If one is missing, the system will fail. Better road behavior. Driving education will give you driving knowledge and improve your behavior and driving skills on the road. Safer roads, safer vehicles. What should you do if your vehicle breaks down? Move the vehicle out of the way so that it is not a source of danger to other vehicles. Turn on hazard light to warn the other road users. Take out all passengers from the vehicle and stop at a sufficient distance from the road and prefer to stand behind the barriers of protection on the road. If the area is dark, turn on the parking lights. Call 999 for road service patrol. Critical situation. What to do in the event of a traffic accident. 5.7.1 Dealing with accidents. 52 Many people have been or will, at some stage, be involved in a traffic accident or incident. It happens suddenly and just as suddenly it is over. Although we would love to believe that it only happens to other people, many experienced drivers has helped swelling the accident statistics. Quite often the accident is blamed on a combination of high speed and poor visibility, although in actual fact it would often be closer to the truth. Simply to note that the driver or drivers involved were incapable of controlling their vehicles in the circumstances that gave rise to the accident. As seen in earlier sections, you can reduce the chances of being involved in an accident by driving defensively. Accidents, unfortunately, are always possible, even with the greatest care. You might come upon the scene of an accident. It could happen that you are the first to arrive there. Now, the safety of both the existing casualties and other road users might be in your hands. You never know how many accidents victims on UAE roads could have been saved by their fellow road users by giving them first aid, but perhaps it could have been as many as a quarter of all victims. If you are certified to provide first aid assistance, be prepared to do so as it could save someone's life. If you are involved in an accident, what should you do? Warn other traffic by switching on hazard warning lights or other lights displaying an advance warning triangle. Have someone else warn and direct other drivers. Remember, further collisions may happen. Let's say you have been involved in a minor accident and do not appear to be injured. Plus 102 critical situations. दुर्घटना की स्थिति में क्या करें? 5.7.1 दुर्घटनाओं से निपटना। 52 बहुत से लोग किसी न किसी स्तर पर यातायात दुर्घटना या घटना में शामिल रहे हैं या होंगे। यह अचानक घटित होता है और अचानक ही यह खत्म हो जाता है। हालांकि हमें यह विश्वास करना अच्छा लगेगा कि यह केवल अन्य लोगों के साथ ही होता है। कई अनुभवी ड्राइवरों ने दुर्घटना के आंकड़ों को बढ़ाने में मदद की है। अक्सर दुर्घटना के लिए तेज गति और खराब दृश्यता के संयोजन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि वास्तव में यह अक्सर सच्चाई के करीब होगा, केवल ये ध्यान देने के लिए कि इसमें शामिल ड्राइवर उन परिस्थितियों में अपने वाहनों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे जिन्होंने दुर्घटना को जन्म दिया। दुर्घटना, जैसा कि पिछले अनुभागों में देखा गया है, आप रक्षात्मक ढंग से गाड़ी चलाकर दुर्घटना में शामिल होने की संभावना को कम कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, अत्यधिक सावधानी बरतने पर भी दुर्घटनाएं हमेशा संभव होती हैं। आप किसी दुर्घटना स्थल पर आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हों। अब, मौजूदा हताहतों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों की सुरक्षा आपके हाथों में हो सकती है। आप कभी नहीं जानते कि संयुक्त अरब अमीरात की सड़कों पर कितने दुर्घटना पीड़ितों को उनके साथी सड़क उपयोगकर्ताओं ने प्राथमिक उपचार देकर बचाया हो सकता है, लेकिन शायद ये सभी पीड़ितों के 1/4 के बराबर हो सकता है। यदि आप प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रमाणित हैं, तो ऐसा करने के लिए तैयार रहें क्योंकि यह किसी की जान बचा सकता है। यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अन्य ट्रैफिक को इसके द्वारा चेतावनी दें। खतरे की चेतावनी देने वाली लाइटें या अन्य लाइटें चालू करना, अग्रिम चेतावनी त्रिकोण प्रदर्शित करना, किसी और को चेतावनी दें और अन्य ड्राइवरों को निर्देशित करें। याद रखें, आगे भी टकराव हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक छोटी सी दुर्घटना में शामिल हुए हैं और आपको कोई चोट नहीं आई है। जोड़ 1 ट्रैफिक हादसे की सूरत में क्या करना है? 5.7 0.1 हादसात से निपटना। 52 बहुत से लोग किसी न किसी मरहले पर ट्रैफिक हादसे या वाकये में मुलव्वस रहे हैं या होंगे। ये अचानक होता है और बिल्कुल उसी तरह जैसे अचानक खत्म हो जाता है। अगरचे हम ये मानना पसंद करेंगे कि ये सिर्फ दूसरे लोगों के साथ होता है, बहुत से तजुर्बाकार ड्राइवरों ने हादसे के आदादोशुमार को बढ़ाने में मदद की है। अक्सर औकात हादसे का जिम्मेदार तेज रफ्तारी और खराब मरयत के इम्तिजाज को ठहराया जाता है। हालांकि हकीकत में ये अक्सर सच्चाई के करीब होता है। सिर्फ ये नोट करना कि ड्राइवर इन हालात में अपनी गाड़ियों को कंट्रोल करने से कासिर थे जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया।
हादसा जैसा कि पहले हिस्सों में देखा गया है, आप दिफाई अंदाज में गाड़ी चलाकर हादसे में मुलव्वस होने के इम्कानात को कम कर सकते हैं। हादिसात बदकिस्मती से हमेशा मुमकिन है, यहाँ तक कि सबसे बड़ी एहतियात के साथ। हो सकता है कि आप हादसे के मकाम पर पहुंच जाएं। ये हो सकता है कि आप वहां पहुंचने वाले पहले शख्स हों। अब दोनों मौजूदा हलाकतों और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत आपके हाथ में हो सकती है। आप कभी नहीं जानते कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सड़कों पर कितने हादिसात के मुतासिरीन को उनके साथी सड़क इस्तेमाल करने वालों ने इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर बचाया होगा, लेकिन शायद ये तमाम मुतासिरीन के 1/4 तक हो सकता था। अगर आपको इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तस्दीक शुदा है, तो ऐसा करने के लिए तैयार रहीं, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है। अगर आप किसी हादसे में मुलव्वस है तो आपको क्या करना चाहिए? दीगर ट्रैफिक को बजरिया खबरदार करें। खतरे की वार्निंग लाइट्स या दीगर लाइट्स को ऑन करना पेशगी इंतबाही मसल से दिखा रहा है। किसी और को खबरदार करें और दूसरे ड्राइवरों को हिदायत दें। याद रखें, मजीद तसादुम हो सकता है। मान लें कि आप एक मामूली हादसे में मुलव्वस हैं और आप जख्मी नजर नहीं आते। जुमा 102 नाजुक हालात मुश्तरका हंगामी खिदमात को कॉल करें और मकाम और हलाकतों की मुकम्मल तफसीलात बताएं। मकाम की तफसीलात सख्त कंधे पर बाकायदा वक्फों पर पीले रंग के निशानात पर निशान जद हैं। अपनी कॉल करने से पहले हमेशा उनको चेक कर लें ताकि हंगामी खिदमात को ये बता सकें कि आप कहां हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 999 डायल करें। जो भी मदद आप कर सकते हैं इसमें शामिल दूसरों को दें। जो लोग गैर जख्मी नजर आते हैं वो सदमे में मुब्तला हो सकते हैं और हो सकता है कि वो अपनी चोटों से बेखबर हों। इसमें आप भी शामिल हैं। अगर शक हो तो अस्पताल में चेक आउट करवाएं। फराहम किए बगैर जाए हादिसा को छोड़ना। अगर आप किसी हादसे में मुलव्वस हैं, तो इस बात को यकीनी बनाएं कि हादसे में मुलव्वस गाड़ी को सड़क से बाहर ले जाएं ताकि किसी खतरे या दीगर ट्रैफिक में रुकावट की नुमाइंदगी न हो। सड़क पर ट्रक या कोई भी चीज जो हुक्काम को उनकी इंक्वायरी में मदद दे सकती है, को किसी भी तरह से मिटा या तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। आपको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जब तक पुलिस उन पर कब्जा नहीं कर लेती वो बरकरार रही। अगर आप ट्रैफिक के निशान, रोड मार्किंग, ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद के लिए बनाए गए किसी भी आले को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको इसे तसल्ली बख्श हालत में बहाल करने के लिए फौरी तौर पर हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। अगर ये नामुमकिन है तो आपको पहले सड़क इस्तेमाल करने वालों को नुकसान के बारे में खबरदार करना चाहिए और फिर पुलिस और अथॉरिटी को मतला करना चाहिए जो निशान को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप पार्क की गई कार में भागते हैं तो मालिक से राब्ता करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अपने नाम और टेलीफोन नंबर की निशानदही करने वाला पैगाम छोड़ें और फिर पुलिस को मतला करें। किसी भी गवाह को नोट करें और यकीनी बनाएं कि वो आपके नाम और पते हासिल करने से पहले ना जाएं। किसी भी गाड़ी के नंबर नोट करें जिनके मुसाफिरों ने हादसा देखा हो। हंगामी गाड़ियों को रास्ता देना हमेशा याद रखें। उनकी चमकती हुई रोशनियों पर निगाह रखें और उनके वार्निंग सायरन को सुनें। आपका नाम और टेलीफोन नंबर एक संगीन जुर्म है जो ड्राइविंग से नाअहल और कैद की सजा का बायस बन सकता है। हादसे की जगह पर आ रहा है। अगर आप हादसे के मकाम पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से नहीं हैं और काफी लोग इमदाद देने के लिए पहले ही रुक चुके हैं, तो आपको एहतियात से गाड़ी चलाना चाहिए और हादसे से परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हादसा मोटरवे के दूसरी तरफ हो तो देखने में सुस्ती ना करें। आप सड़क के किनारे एक और हादसे का सबब बन सकते हैं या कम अज कम इजाफी और गैर जरूरी ट्रैफिक की भीड़। आगे हादसा ना और साझा आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें और स्थान और हताहतों की पूरी जानकारी दें। स्थान का विवरण कठोर कंधे पर नियमित अंतराल पर स्थित पीले संकेतों पर अंकित किया जाता है। आपातकालीन सेवाओं को ये बताने में सक्षम होने के लिए कि आप कहां हैं, कॉल करने से पहले हमेशा इन्हें जांच लें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में 999 डायल करें। इसमें शामिल अन्य लोगों को आप जो भी मदद कर सके दें। जो व्यक्ति अस्वस्थ प्रतीत होते हैं वे सदमे से पीड़ित हो सकते हैं और वास्तव में वे अपनी चोटों से अनजान हो सकते हैं। इसमें आप भी शामिल हैं। यदि संदेह हो तो अस्पताल में जांच कराएं। दुर्घटना स्थल को बिना उपलब्ध कराए छोड़ देना। यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं तो अन्य यातायात में खतरे या बाधा उत्पन्न होने से बचने के लिए दुर्घटना में शामिल वाहन को सड़क से बाहर ले जाना सुनिश्चित करें। सड़क पर पटरियों या किसी भी चीज जो अधिकारियों को उनकी जांच में मदद कर सकती है को किसी भी तरह से मिटाया या संशोधित नहीं किया जाना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि पुलिस के कब्जा होने तक वे बरकरार रहें। यदि आप ट्रैफिक साइन, रोड मार्किंग
ट्रैफिक लाइट या ट्रैफिक को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए किसी भी उपकरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपको इसे संतोषजनक स्थिति में बहाल करने के लिए तुरंत हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि यह असंभव है, तो आपको पहले अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान के बारे में चेतावनी देनी चाहिए और फिर पुलिस और प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए जिसने संकेत लगाया है और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। यदि आप किसी खड़ी कार से टकराते हैं, तो मालिक से संपर्क करने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अपना नाम और टेलीफोन नंबर दर्शाते हुए एक संदेश छोड़ें और फिर पुलिस को सूचित करें। किसी भी गवाह को नोट करें और सुनिश्चित करें कि वे आपके नाम और पते प्राप्त करने से पहले न जाएं। उन वाहनों के नंबर नोट कर लें जिनके सवारों ने दुर्घटना देखी हो। आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना हमेशा याद रखें। उनकी चमकती रोशनी से सावधान रहें और उनके चेतावनी सायरन को सुनें। आपका नाम और टेलीफोन नंबर एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए ड्राइविंग से अयोग्यता और जेल की सजा हो सकती है। किसी दुर्घटना स्थल पर आ रहा हूं। यदि आप किसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले लोगों में से नहीं हैं और सहायता देने के लिए पर्याप्त लोग पहले ही रुक चुके हैं, तो आपको सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए और दुर्घटना से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि दुर्घटना मोटरवे के दूसरी ओर हुई है, तो देखने में देर न करें। आप सड़क के किनारे एक और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, या कम से कम अतिरिक्त और अनावश्यक ट्रैफिक जाम का कारण बन सकते हैं। आगे दुर्घटना गंभीर स्थितियां or shared call emergency services, and give full details of the location and casualties. Location details are marked on yellow signs located at regular intervals on the hard shoulder. Always check these before you make your call to be able to tell the emergency services exactly where you are. In case of any emergency, dial 999. Give whatever help you can to others involved. Persons who seem to be unhurt may be suffering from shock, and may in fact be unaware of their injuries. This includes you. If in doubt, get checked out at the hospital. Leaving the scene of an accident without providing if you are involved in an accident. Ensure moving the vehicle involved in an accident outside the road to avoid representing a danger or obstruction to other traffic. Tracks on the road, or anything, which may help the authorities with their inquiry, must not be erased or modified in any way. You must ensure that they remain intact until the police take over. If you damage a traffic sign, road marking, traffic light, or any device designed to help control the traffic, you must immediately do all you can to restore it to a satisfactory state. If this is impossible, you must first warn other road users of the damage and then notify the police and the authority that put up and is responsible for maintaining the sign. If you run into a parked car, try to get in touch with the owner. If you cannot, leave a message indicating your name and telephone number, and then notify the police. Note any witnesses and make sure they do not go before you get their names and addresses. Make a note of the numbers of any vehicles whose occupants might have witnessed the accident. Always remember to give way to emergency vehicles. Watch out for their flashing lights and listen for their warning sirens. Your name and telephone number is a serious offense, which may lead to disqualification from driving and a prison term. Coming upon the scene of an accident. If you are not one of the first to arrive at the scene of an accident and enough people have already stopped to give assistance, you should drive past carefully and not become distracted by the accident. If the accident is on the other side of a motorway, do not slow down to look. You may cause another accident on your side of the road, or, at the very least, additional and unnecessary traffic congestion. Accident ahead critical situations. કટોકટીની સેવાઓને કોલ કરો અને સ્થળ અને જાનહાનિની સંપૂર્ણ વિગતો આપો. સ્થાનની વિગતો સખત ખભા પર નિયમિત અંતરાલો પર સ્થિત પીળા ચિહ્નો પર ચિહ્નિત થયેલ છે. ઇમરજન્સી સેવાઓને તમે ક્યાં છો તે બરાબર જણાવવા માટે તમે તમારો કોલ કરો તે પહેલાં હંમેશા આ તપાસો. કોઈ પણ કટોકટીના કિસ્સામાં 999 ડાયલ કરો. સામેલ अन्य લોકોને તમે જે કંઈ મદદ કરી શકો તે આપો. જે વ્યક્તિઓ અહિત લાગે છે તેઓ આઘાતથી પીડાતા હોઈ શકે છે અને હકીકતમાં તેઓ તેમની ઈજાઓથી અજાણ હોઈ શકે છે. આમાં તમારો સમાવેશ થાય છે. જો શંકા હોય તો હોસ્પિટલમાં તપાસ કરાવો. પ્રદાન કર્યા વિના અકસ્માત સ્થળ છોડીને જતા રહ્યા. જો તમે અકસ્માતમાં સંડોવાયેલા હો તો અકસ્માતમાં સામેલ વાહનને રસ્તાની બહાર ખસેડવાની ખાતરી કરો જેથી અન્ય ટ્રાફિકમાં જોખમ કે અવરોધ ન આવે. રસ્તા પરના ટ્રેક અથવા કોઈપણ વસ્તુ જે અધિકારીઓને તેમની તપાસમાં મદદ કરી શકે છે તેને કોઈપણ રીતે ભૂંસી અથવા સુધારવી જોઈએ નહીં. તમારે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે જ્યાં સુધી પોલીસ કબજો ન લે ત્યાં સુધી તેઓ અકબંધ રહેશે.
જો તમે ટ્રાફિક સાઇન, રોડ માર્કિંગ, ટ્રાફિક લાઇટ અથવા ટ્રાફિકને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરવા માટે રચાયેલ કોઈપણ ઉપકરણને નુકસાન પહોંચાડો છો, તો તમારે તેને સંતોષકારક સ્થિતિમાં પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે તરત જ તમારાથી બનતું બધું કરવું જોઈએ. જો આ અશક્ય હોય તો તમારે પહેલા રસ્તાના અન્ય ઉપયોગકર્તાઓને નુકસાન વિશે ચેતવણી આપવી જોઈએ અને પછી પોલીસ અને સત્તાધિકારીને સૂચિત કરવું જોઈએ જે સાઇન મૂકે છે અને તેની જાળવણી માટે જવાબદાર છે. જો તમે પાર કરેલી કારમાં દોડો છો, તો માલિક સાથે સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમે ન કરી શકો, તો તમારું નામ અને ટેલિફોન નંબર દર્શાવતો સંદેશ મૂકો અને પછી પોલીસને જાણ કરો. કોઈ પણ સાક્ષીઓની નોંધ લો અને ખાતરી કરો કે તમે તેમના નામ અને સરનામા મેળવો તે પહેલાં તેઓ ન જાય. કોઈ પણ વાહનના નંબરોની નોંધ બનાવો કે જેના સવારોએ અકસ્માત જોયો હોય. ઇમરજન્સી વાહનોને રસ્તો આપવાનું હંમેશા યાદ રાખો. તેમની ફ્લેશિંગ લાઇટ્સનું ધ્યાન રાખો અને તેમના ચેતવણીના સાયરન સાંભળો. તમારું નામ અને ટેલિફોન નંબર એ ગંભીર ગુનો છે જે ડ્રાઇવિંગ માટે અયોગ્યતા અને જેલની સજા તરફ દોરી શકે છે. અકસ્માત સ્થળ પર આવી રહ્યા છે. જો તમે અકસ્માતના સ્થળે પહોંચનારા પ્રથમ વ્યક્તિઓમાંના એક ન હોવ અને પૂરતા લોકો સહાય આપવા માટે રોકાઈ ગયા હોય, તો તમારે કાળજીપૂર્વક વાહન ચલાવવું જોઈએ અને અકસ્માતથી વિચલિત ન થવું જોઈએ. જો અકસ્માત મોટરવેની બીજી બાજુ છે, તો જોવા માટે ધીમી ન થાઓ. તમે તમારા રસ્તાની બાજુ પર અન્ય અકસ્માતનું કારણ બની શકો છો, અથવા ઓછામાં ઓછું વધારાની અને બિનજરૂરી ટ્રાફિક ભીડ. આગળ અકસ્માત જટિલ પરિસ્થિતિ. ટ્રાફિક અકસ્માતની ઘટનામાં શું કરવું? 5.7.2 આગ. તમારા વાહનમાં યોગ્ય અગ્નિશામક ઉપકરણ રાખવાથી તમને નાની આગ બુઝાવવામાં મદદ મળી શકે છે. જો આગ ગંભીર જણાય તો તેને કાબૂમાં લેવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં. વાહનને સારી રીતે બહાર કાઢો અને તેને ફાયર બ્રિગેડને છોડી દો. જો તમને એન્જિનના ડબ્બામાં આગ લાગવાની શંકા હોય, તો બધા મુસાફરોને સલામત રીતે બહાર કાઢો. સામેલ લોકો સાથે વ્યવહાર. જાનહાનિને કોઈપણ સંજોગોમાં ખસેડવી જોઈએ નહીં સિવાય કે તેઓ રસ્તા પરના અન્ય વાહનો દ્વારા ચલાવી શકાય અથવા જો આગ કે વિસ્ફોટનું જોખમ હોય. અને જ્યાં સુધી આવું કરવું જરૂરી ન હોય ત્યાં સુધી મોટરસાયકલ ચાલકનું હેલ્મેટ દૂર કરશો નહીં. અને યાદ રાખો, આગ ભયજનક ઝડપે વાહન દ્વારા ફેલાઈ શકે છે. જો કે પરિસ્થિતિ તદ્દન મૂંઝવણભરી હોઈ શકે છે, શક્ય તેટલું શાંત રહેવાનો પ્રયાસ કરો. જ્યારે એમ્બ્યુલન્સ આવે ત્યારે ક્રૂને શક્ય તેટલી હકીકતો આપો, પરંતુ કોઈ ધારણા, નિદાન વગેરે નહીં. 104 જટિલ પરિસ્થિતિ. જાનહાનિને એમ્બ્યુલન્સમાં હોસ્પિટલમાં લઈ જવી જોઈએ, તેમને શક્ય તેટલું ઓછું ખસેડવું જોઈએ. અકસ્માતો સાથે સંકળાયેલ ગભરાટ ઘણીવાર અત્યંત તણાવપૂર્ણ હોય છે. જો શક્ય હોય તો એક વ્યક્તિએ ત્રિકોણાકાર સંકટ ચિહ્નો ગોઠવીને સહાય મેળવવા અને અન્ય માર્ગ વપરાશકર્તાઓને અકસ્માત અંગે ચેતવણી આપવાનું કાર્ય સંભાળવું જોઈએ. स्थितियां 5.7 यातायात दुर्घटना की स्थिति में क्या करें? 5.7.2 आग. अपने वाहन में उपयुक्त अग्निशामक यंत्र रखने से आपको छोटी सी आग बुझाने में मदद मिल सकती है. यदि आग गंभीर प्रतीत हो तो उससे निपटने का प्रयास न करें. वाहन से अच्छी तरह दूर हो जाएं और इसे फायर ब्रिगेड पर छोड़ दें. यदि आपको इंजन डिब्बे में आग लगने का संदेह है, तो सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालें. इसमें शामिल लोगों से निपटना. किसी भी परिस्थिति में हताहतों को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे सड़क पर अन्य वाहनों द्वारा कुचले न जाएं या आग या विस्फोट का खतरा न हो. और जब तक ऐसा करना आवश्यक न हो, मोटरसाइकिल चालक का हेलमेट न हटाएं. और याद रखें, किसी वाहन में आग खतरनाक गति से फैल सकती है. हालांकि स्थिति पूरी तरह से भ्रमित करने वाली हो सकती है. यथासंभव शांत रहने का प्रयास करें. जब एक एम्बुलेंस आती है तो चालक दल को जितना हो सके उतने तथ्य दें, लेकिन कोई धारणा, निदान आदि न करें. जोड़ 104 गंभीर स्थितियां. हताहतों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाना चाहिए. उन्हें यथासंभव कम स्थानांतरित किया जाना चाहिए. दुर्घटनाओं से जुड़ी घबराहट अक्सर बेहद तनावपूर्ण होती है. यदि संभव हो तो एक व्यक्ति को सहायता प्राप्त करने और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को त्रिकोणीय खतरे के संकेत स्थापित करके दुर्घटना के प्रति सचेत करने का प्रभार लेना चाहिए. यहाँ तक कि तो आग. अपनी गाड़ी में मुनासिब आग बुझाने वाला आला ले जाने से आपको छोटी आग बुझाने में मदद मिल सकती है. अगर आग संगीन मालूम होती है तो इससे निपटने की कोशिश न करें. गाड़ी को अच्छी तरह से साफ करें और उसे फायर ब्रिगेड पर छोड़ दें. अगर आपको इंजन के डब्बे में आग लगने का शुबा है तो तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत बाहर निकालें.
मुलव्वस अफराद से निमटना हलाकतों को किसी भी हालत में मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वो सड़क पर दूसरी गाड़ियों के जरिए ना चल सकें या अगर आग या धमाके का खतरा हो। और मोटरसाइकिल सवार का हेलमेट ना उतारें जब तक कि ऐसा करना जरूरी ना हो। और याद रखें, आग खतरनाक रफ्तार से गाड़ी के जरिए फैल सकती है। अगरचे सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उलझ सकती है, जितना मुमकिन हो पुरसुकून रहने की कोशिश करें। जब एम्बुलेंस पहुंचती है तो अमले को जितने हकाइक हो सकते हैं बताएं, लेकिन कोई मफरूजा तशखीस वगैरह नहीं। जुमा 104 नाजुक हालात जख्मियों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाना चाहिए। इन्हें हर मुमकिन हद तक कम मुंतकिल किया जाना चाहिए। हादिसात से वाबस्ता घबराहट अक्सर इंतहाई दबाव का बायस होती है। अगर मुमकिन हो तो एक शख्स को से रुखी खतरे के निशानात लगाकर इमदाद हासिल करने और दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों को हादसे से आगाह करने का चार्ज लेना चाहिए। यहाँ तक कि 103 इस बाब का मुताला करने के बाद इन सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। अगर आपको जवाब के बारे में यकीन नहीं है तो वापस जाएं और इस हिस्से को दोबारा पढ़ें। आगाह रहीं कि सवालात बाब के पूरे मवाद का इहाता नहीं करते। एक रोड ट्रैफिक हादिसात की अहम वजूहात क्या है? 2 एक गाड़ी के हादिसात की बुनियादी वजह क्या है? 3 क्रॉस रोड हादिसात की बुनियादी वजूहात क्या है? 4 आपस में टकराव की बुनियादी वजूहात क्या है? 53 5 ओवरटेकन हादिसात की बुनियादी वजूहात क्या है? 6 पैदल चलने वालों के हादिसात की वजूहात क्या है? 7 साइकिल सवारों के हादिसात की बुनियादी वजूहात क्या है? 8 आप नाजुक सूरत-ए-हाल से कैसे बचते हैं? महफूज ड्राइविंग माहौल हासिल करने के लिए क्या जरूरत है? 10 रोड ट्रैफिक हादसे की सूरत में आपको क्या करना चाहिए? नाजुक घटना गंभीर स्थितियां 103 एक बार जब आप इस अध्याय का अध्ययन कर लें, तो इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आप उत्तर के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो वापस जाएं और उस भाग को दोबारा पढ़ें। ध्यान रखें कि प्रश्न अध्याय की संपूर्ण सामग्री को कवर नहीं करते हैं। एक सड़क यातायात दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या हैं? 2 एकल वाहन दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण क्या है? 3 चौराहे पर दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं? 4 आमने सामने की टक्कर के मुख्य कारण क्या हैं? 53 5 ओवरटेक करने से होने वाली दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं? 6 पैदल यात्रियों की दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं? 7 साइकिल चालक दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं? 8 आप किसी गंभीर स्थिति से कैसे बचते हैं? सुरक्षित ड्राइविंग वातावरण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? 10 सड़क यातायात दुर्घटना की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? गंभीर स्थितियां 105 जोड़। Head critical situations 103. Once you have studied this chapter, try to answer these questions. If you are not sure about the answer, go back and read that part again. Be aware that the questions do not cover the whole content of the chapter. 1. What are the leading causes of road traffic accidents? 2. What is the main reason behind single vehicle accidents? 3. What are the main reasons for crossroads accidents? 4. What are the main reasons for head-on collisions? 53. 5. What are the main causes of overtaking accidents? 6. What are the causes of pedestrian accidents? 7. What are the main causes of cyclist accidents? 8. How do you avoid a critical situation? What is needed to achieve a safe driving environment? 10. What should you do in the event of a road traffic accident? Critical 6.1 Emotional maturity 54. Why do we not allow anyone to take a driver's license before 18 years of age? The answer is, of course, that people 18 and over are assumed to be sufficiently mature to drive in a safe, responsible manner. Unfortunately, this is often very far from the reality. Young, inexperienced drivers are involved in far more road accidents than their older, more practiced colleagues. Why is this? The answer is almost certainly that novice drivers have insufficient experience to fully understand the traffic environment, and many young drivers are insufficiently mature. Let us take a look at what this means. Good driving requires experience and a good deal of skill. The senses must be able to record a huge age variety of impressions all at once, which the brain must quickly process and translate into decisions. The driver must be able to put himself or herself in the place of other road users, must think ahead, must be resourceful and demonstrate foresight. In fact, it is hard to comprehend how the brain can process such a vast plus amount of information, and yet we take it for granted that things will work out as they should, even in a complicated traffic situation. But it takes only a small mistake for everything to go wrong, just a little too much pressure on the accelerator and the driver's capacity is overreached and she makes a mistake. Many young drivers have had less opportunity to learn their limits and so they commit more driving errors than more experienced drivers. In addition, young people generally find it more difficult to rectify their mistakes.
Driving behavior and road courtesy 1. भावनात्मक परिपक्वता 54 हम किसी को भी 18 वर्ष की आयु से पहले ड्राइविंग लाइसेंस लेने की अनुमति क्यों नहीं देते? निस्संदेह इसका उत्तर यह है कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व माना जाता है। जिम्मेदार ढंग। दुर्भाग्य से यह अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होता है। युवा अनुभवहीन ड्राइवर अपने पुराने अधिक अनुभवी सहकर्मियों की तुलना में कहीं अधिक सड़क दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं। ऐसा क्यों है? उत्तर लगभग निश्चित रूप से यह है कि नौसिखिए ड्राइवरों के पास यातायात वातावरण को पूरी तरह से समझने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है और कई युवा ड्राइवर अपर्याप्त रूप से परिपक्व हैं। आइए देखें कि इसका क्या मतलब है। अच्छी ड्राइविंग के लिए अनुभव और काफी कौशल की आवश्यकता होती है। इंद्रियों को चाहिए एक ही समय में विभिन्न प्रकार के छापों को रिकॉर्ड करने में सक्षम होना, जिन्हें मस्तिष्क को तुरंत संसाधित करना होगा और निर्णयों में अनुवाद करना होगा। ड्राइवर को स्वयं को अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के स्थान पर रखने में सक्षम होना चाहिए, उसे आगे के बारे में सोचना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए और दूरदर्शिता का प्रदर्शन करना चाहिए। वास्तव में ये समझना कठिन है कि मस्तिष्क इतने बड़े पैमाने पर प्रक्रिया कैसे कर सकता है, जोड़ जानकारी की मात्रा, और फिर भी हम यह मान लेते हैं कि जटिल ट्रैफिक स्थिति में भी चीजें उसी तरह काम करेगी जैसी होनी चाहिए। वो थी, लेकिन सब कुछ गलत होने के लिए बस एक छोटी सी गलती की जरूरत होती है। बस एक्सीलेटर पर थोड़ा सा ज्यादा दबाव पड़ने से ड्राइवर की क्षमता खत्म हो जाती है और वो गलती कर बैठता है। कई युवा ड्राइवरों को अपनी सीमाएं सीखने का कम अवसर मिला है और इसलिए वे अधिक अनुभवी ड्राइवरों की तुलना में अधिक ड्राइविंग गलतियां करते हैं। इसके अलावा युवाओं को आमतौर पर अपनी गलतियों को सुधारना भावनात्मक परिपक्वता 6.1.1 नैतिक आचार संहिता का विकास करना है। शिशुओं के रूप में सभी मनुष्य अहंकार प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश बच्चे मुख्य रूप से अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की इच्छाओं और जरूरतों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इसे विकास की अहम अवस्था के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अहंकार इस समझ को जन्म देता है कि मानव समाज को ठीक से काम करने के लिए नियमों का एक सेट होना चाहिए। बच्चा इन नियमों को स्वीकार करता है और यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से उनका पालन करने का प्रयास करता है। इसे नियम चरण कहा जाता है। बाद में बढ़े हुए अनुभव के साथ और भी ऊंचे स्तर तक पहुंचना संभव है। एक ऐसा स्तर जिसकी विशेषता अन्य लोगों के प्रति सम्मान और समझ में वृद्धि, उदारता और सहनशीलता, एक विनम्र जागरूकता है कि मानवीय क्षमताएं सीमित हैं। वो ड्राइवर जो जागरूकता के इस स्तर तक पहुंच गया है। 110 ड्राइविंग व्यवहार और सड़क शिष्टाचार 6.1 भावनात्मक परिपक्वता 56 ट्रैफिक में अलग हटने से नहीं डरते, अपने साथी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए चीजों को आसान बनाने में मदद करते हैं, अन्य ड्राइवरों के साथ समुदाय की भावना महसूस करते हैं और अन्य ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए विचार दिखाते हैं। कानून का अक्षरशः जानना पर्याप्त नहीं है, जो मायने रखता है वो है उसकी भावना। इसे सामुदायिक मंच कहा जाता है। दुर्भाग्य से हालांकि बहुत से लोग अहंकार के चरण से आगे नहीं बढ़ पाते हैं और इसे अपने ड्राइविंग व्यवहार पर हावी होने देते हैं। यह उस अवस्था को दर्शाता है जब बच्चा रेत के गड्ढे में खेलता था और बिना एक पल की झिझक के अपने सबसे अच्छे दोस्त की बाल्टी और कुदाल चुरा लेता था। 6.1.2 अपरिपक्वता दुर्घटना के आंकड़ों को बढ़ावा देने में मदद करती है। ये दुर्घटनाओं को अधिक बार और अक्सर अधिक गंभीर बना देता है। एक अपरिपक्व युवा पुरुष ड्राइवर जो अपने अधिकार या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना चाहता है, वो अपनी कार को शक्ति के विशाल संसाधनों के साथ एक प्रकार के उपकरण के रूप में देखता है जो उसके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा, उसे सख्त और अधिक स्वतंत्र बनाएगा। हालांकि वो सचेत रूप से ऐसे विचार नहीं सोचता है, फिर भी वे उसमें मौजूद हैं, डेफिनिएंट वैलेटुल अवचेतन, और बहुत पहले ही उसे किसी बहुत खतरनाक स्थिति में ले जाने की संभावना है। ऐसे संकट की स्थितियां हैं कि वो स्वयं को उस सीमा पर भी पा सकता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है, जहां अब सलाह और जानकारी नहीं दी जा सकती है। 6.1.3 रोल मॉडल। चूंकि एक युवा ड्राइवर का दृष्टिकोण और व्यवहार काफी हद तक युवाओं के आदर्शों से बना होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि युवा ड्राइवर स्वीकार या सामाजिक व्यवहार की मूल बातें और विशेष रूप से जिम्मेदारी, सहिष्णुता और की अवधारणाओं को समझें। दूसरों के लिए विचार। कम से कम कहें तो आज के कई मूल्य संदिग्ध हैं। विज्ञापन, फिल्में और कॉमिक स्ट्रिप्स, जैसा कि वे अक्सर भ्रामक और विकृत होते हैं, ने कई लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकताओं और कल्पना और रोल मॉडल की रोमांचक दुनिया के बीच अंतर करना मुश्किल बना दिया है।
दुख की बात है कि कई युवाओं के लिए नायक हमेशा जीतता है। और एक बार युवा लोग अपने आप पर विश्वास करो अजेय, वे ऐसा करते हैं, उनके द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों की उपेक्षा करें। ट्रैफिक में वास्तविकता में जोखिम होता है, वाकई बहुत खतरनाक है। अशारिया एक जज्बाती पख्तगी 6.1 सफर अशारिया एक अखलाकी जाबिता इखलाक तैयार करना एक द रेट अलामत। नौज़ायदा होने के नाते तमाम इंसान खुद पसंदी का मुजाहिरा करते हैं। ज्यादातर बच्चे बुनियादी तौर पर अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की ख्वाहिशात और जरूरियात पर बहुत कम तवज्जो देते हैं। ये तरक्की के अना मरहले के तौर पर जाना जाता है। जो बच्चा बड़ा होता है, अना परस्ती इस बात को समझने का रास्ता फराहम करती है कि इंसानी मुआशरे के सही तरीके से काम करने के लिए उसूलों का एक मजमुआ होना चाहिए। बच्चा इन उसूलों को कबूल करता है और इनकी पाबंदी करने की कोशिश करता है जहां तक हो सकता है। इसे हुक्मरानी का मरहला कहा जाता है। बाद में बढ़ते हुए तजर्बे के साथ इससे भी ऊंचे दर्जे तक पहुंचना मुमकिन है, एक ऐसी सतह जिसकी खुसूसियत दूसरे लोगों के लिए एहतराम और उनकी समझ में इजाफा, सखावत और रवादारी के जरिए, इस आजिज़ी से आगाही के जरिए कि इंसानी सलाहियतें महदूद हैं। वो ड्राइवर जो बेदारी के इस दर्जे तक पहुंचा है। 110 ड्राइविंग का रवैया और सड़क पर बशक्रिया 6.1 जज्बाती पख्तगी 56 ट्रैफिक में एक तरफ हटने से नहीं डरता, अपने साथी सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए चीजों को आसान बनाने में मदद करने के लिए, दूसरे ड्राइवरों के साथ बरादरी का एहसास महसूस करने और दूसरे ड्राइवरों और पैदल चलने वालों के लिए ख्याल जाहिर करने के लिए। कानून के खत को जानना काफी नहीं है, इसकी रूह क्या अहमियत रखती है। इसे कम्युनिटी स्टेज कहा जाता है। ताहम बदकिस्मती से बहुत से लोग अना के मरहले से गुजर नहीं पाते और उसे अपने ड्राइविंग रवैये पर हुक्मरानी करने देते हैं। ये इस मरहले की नुमाइंदगी करता है जब बच्चा रेत के गड्ढे में खेलता था और एक लम्हे की हिचकिचाहट के बगैर अपने बेहतरीन दोस्त की बाल्टी और कोदाल चोरी करता था। 6.1 सफर अशारिया 2 नापुख्तगी हादसे के आदादोशुमार को बढ़ाने में मदद करती है। ये हादिसात को ज्यादा बार बार और अक्सर ज्यादा शदीद बनाता है। एक नापुख्ता नौजवान मर्द ड्राइवर जो अपनी इख्तियार या बर्तरी का मुजाहिरा करना चाहता है, अपनी कार को ताकत के वसी वसाइल के साथ एक ऐसे आले के तौर पर देखता है जो इसकी शख्सियत को निखारेगा, उसे सख्त और खुद मुख्तार बनाएगा। अगरचे वो शऊरी तौर पर ऐसे ख्यालात नहीं सोचता, लेकिन इसके बावजूद वो इसके अंदर मौजूद है। दावा वालियत लाशूरी और मुमकिना तौर पर उसे बहुत पहले किसी खतरनाक सूरत-ए-हाल में ले जाने का इम्कान है। ऐसे खतरे के हालात हैं कि वो खुद को इस सरहद पर भी पा सकता है जहां से वापसी नहीं होती, जहां से मशवरा और इत्तला नहीं दी जा सकती। 6.1 सफर अशारिया 3 रोल मॉडल चूंकि एक नौजवान ड्राइवर का नुक्ता नजर और तर्ज अमल बड़ी हद तक नौजवानों के आइडियल के मुताबिक होता है, इसलिए ये जरूरी है कि नौजवान ड्राइवर काबिल कबूल समाजी रवैये की बुनियादी बातों को भी समझी और खास तौर पर जिम्मेदारी, रवादारी और तसव्वुरात। दूसरों के लिए गौर। आज की बहुत सी अफ्तार काबिल एतराज हैं, कम अज कम कहना। इश्तिहारात, फिल्में और कामिक सेटअप्स फरेब देने वाली और मसखा करने वाली जैसा कि वो अक्सर होते हैं, ने बहुत से लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकतों और फंतासी, फिक्शन और रोल मॉडल की दिलचस्प दुनिया के दरमियान फर्क करना मुश्किल बना दिया है। अफसोस की बात है कि बहुत से नौजवानों के लिए हीरो हमेशा जीतता है, और एक बार नौजवान लोग खुद को मानते हैं नाकाबिल तस्खीर, वो करते हैं उनके चलने वाले खतरात को नजरअंदाज करें। ट्रैफिक में हकीकत में खतरात वाकई बहुत खतरनाक हैं। 4 जिम्मेदारी पख्तगी के साथ साथ दूसरों के साथ एक जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करता है, जिसे हम तजर्बे से सीखकर और इस बात को जहन में रखकर हासिल कर सकते हैं कि हमारे साथ सड़क इस्तेमाल करने वाले बाज़ औक़ात गलतियां भी कर सकते हैं। आज के मुआशरे में हम बहुत से हुकूक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन हमारी भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और अगर मुआशरे को मजमूई तौर पर सही तरीके से काम करना है, तो हर फर्द को जिम्मेदारी का एहसास बरकरार रखना चाहिए और दूसरे लोगों के लिए एहतराम का मुजाहिरा करना चाहिए। अगर हर शख्स अपने अपने उसूलों के मुताबिक और सड़क इस्तेमाल करने वालों की परवाह किए बगैर गाड़ी चलाता है तो ट्रैफिक कितनी अच्छी तरह चलती है। पिछली चंद दहाइयों में रफ्तार तेज हुई है और मजमूई तौर पर ट्रैफिक का माहौल सख्त हो गया है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो 20 साल में हम कहां होंगे? दूसरे लफ्जों में, हादिसात आज के मुकाबले में ज्यादा या कम कसरत से होंगे। इसका इन्हिसार बड़ी हद तक इस बात पर है कि आया मुस्तकबिल के ड्राइवर सड़क के उसूलों की पाबंदी करते हुए और कबूल करना सीखते हुए दूसरे लोगों के लिए एहतराम और ख्याल का मुजाहिरा कर सकेंगे। उनके अपने अमाल के नताइज।
ज़ाबिता इफ़लाक की नशोनुमा और मुतअद्दिद वाज़ेह तौर पर पहचाने जाने वाले मराहिल पर जिम्मेदारी का एहसास एक खुसूसियत है जो तमाम इंसानों के लिए मुश्तरक है। बदकिस्मती से किसी भी वजह से हर कोई एक ही सतह तक नहीं पहुंचता। एक महफूज ड्राइवर दूसरे लोगों की गलतियों से परेशान नहीं होता है, वो उनको अपनाता है। वाज़ेह तौर पर हम दूसरों के लिए जितना ज्यादा गौर करेंगे, ट्रैफिक इतनी ही हमवार और मुस्तकिल तौर पर रवाना होगी। 56 जुमा 6.0 शनाख्त कमजोर शनाख्त अपनी शनाख्त कायम करने की तरफ तवील रास्ता तजरिबाती मरहले से गुजरता है जिसमें नौजवान ये जांचना पसंद करता है कि वो किस हद तक जा सकता है। इस उम्र में यह कायम करना जरूरी है कि आप कौन हैं, आप किसके लिए खड़े हैं, आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। बदकिस्मती से सड़क पर यह अक्सर ऐसा लगता है कि ये देखना चाहता है कि कार भी क्या कर सकती है, आया वो इस तेज मोड़ को इसी पर ले जा सकती है, आया उसे सुकट से बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो वक्त लगता है उसे चंद मिनटों के लिए बंद कर दिया जाए। 1.4 जिम्मेदारी परिपक्वता के साथ साथ दूसरों के प्रति एक जिम्मेदार रवैया अपनाया जाता है जिसे हम अनुभव से सीखकर और यह ध्यान में रखकर प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे अलावा अन्य सड़क उपयोगकर्ता कभी कभी गलतियां कर सकते हैं। आज के समाज में हमें अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन हमारे कई दायित्व भी हैं, और यदि समाज को समग्र रूप से ठीक से काम करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी की भावना बनाए रखनी चाहिए और अन्य लोगों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यदि हर कोई अपने नियमों के अनुसार और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की परवाह किए बिना गाड़ी चलाए तो यातायात का प्रवाह कितना अच्छा होगा। पिछले कुछ दशकों में गति तेज हो गई है और समग्र यातायात माहौल कठिन हो गया है। अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं तो 20 साल बाद हम कहाँ होंगे? दूसरे शब्दों में, आज की तुलना में दुर्घटनाएं अधिक होंगी या कम, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि भविष्य के ड्राइवर सड़क के नियमों का पालन करते हुए और स्वीकार करना सीखते हुए अन्य लोगों के प्रति सम्मान और विचार दिखाने में सक्षम होंगे या नहीं। उनके अपने कार्यों के परिणाम, नैतिक आचरण संहिता का विकास और कई स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य चरणों में जिम्मेदारी की भावना एक ऐसी विशेषता प्रतीत होती है जो सभी मनुष्यों के लिए सामान्य है। दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से हर कोई समान स्तर तक नहीं पहुंचता है। एक सुरक्षित ड्राइवर दूसरे लोगों की गलतियों से चिढ़ता नहीं है, वो उनके अनुकूल ढल जाता है। स्पष्ट रूप से, हम दूसरों के प्रति जितना अधिक विचार दिखाएंगे, यातायात उतना ही सहज और अधिक स्थिर रूप से प्रवाहित होगा। 56.6.1.5 पहचान, कमजोर पहचान। किसी की पहचान स्थापित करने की दिशा में लंबी यात्रा एक प्रायोगिक चरण से होकर गुजरती है जिसमें युवा व्यक्ति यह परीक्षण करना पसंद करता है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। इस उम्र में ये स्थापित करना महत्वपूर्ण है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। दुर्भाग्य से सड़क पर यह अक्सर ये देखने की इच्छा का रूप लेता है कि कार क्या कर सकती है, क्या यह 80 पर इतना तीव्र मोड़ ले सकती है, क्या इसे स्किड से बाहर निकाला जा सकता है, या क्या ये कर सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में लगने वाले समय में कुछ मिनटों की कमी की जाए। ड्राइविंग व्यवहार और सड़क शिष्टाचार 111.1 Emotional maturity 6.1.6 Adapting to reality, deficient reality. The ability to predict how a given situation will develop demands experience, much practice and, let's face it, maturity. Many drivers are apparently not very mature, such as the young man who thinks he is a star of the Formula One racing circuit and roars along the highways or the Corniche, passing everyone else as closely as he can and taking terrifying risks. Not very mature behavior. He needs to grow up. The inability to distinguish between the worlds of make-believe and reality in the ordinary situations of everyday life, such as driving along a busy road, may be normal in a small child, but it is not what we would expect of an 18-year-old. Could it be that the bold, young driver is uncertain of his true identity? That his self-image is perhaps not quite in line with his real being? Perhaps he admires a Formula One racing driver and even thinks that he is a racer. But if he tries to act as a racer, he is playing a part he cannot handle and, to make matters worse, he is playing it on the public highway, on the Corniche instead of on the racetrack. 6.1.7 Poor self-control #57 Another important aspect of maturity is self-control. Children who lose their temper display their irritation and rage in an uncontrolled manner. They scream, they kick, they lash out at people and objects that get in their way. An uncontrolled display of aggressive behavior such as this could have disastrous results out on the road. In traffic, therefore, it is vital not to let your irritation get out of hand, even though you may be quite justified in considering someone else's driving style to be totally at fault.
Aggressiveness makes you a bad driver, not only because it impairs your ability to assess the traffic environment but because it leads you to make unconsidered decisions. And aggressive behavior creates conflict with other drivers. A characteristic of a good driver is the ability to remain alert and concentrated over a long period. Daydreaming, on the other hand, is a bad habit, one that causes your attention to wander from the all-important task of driving. +112 Driving behavior and road courtesy. जज्बाती पख्तगी 6.1 हकीकत के मुताबिक ढलना कमी हकीकत पेशन गोई करने की सलाहियत किस तरह एक दी गई सूरत हाल में तरक्की करेगी तजुर्बा बहुत ज्यादा मशक और आइए इसका सामना करें पख्तगी का मुतालबा करता है। बहुत से ड्राइवर बज़ाहिर ज्यादा बालिग नहीं होते हैं जैसा कि वो नौजवान जो सोचता है कि वो फार्मूला एक रेसिंग सर्किट का एक सितारा है और शाहराहों या कारनेशे पर गरजता है हर किसी को जितना करीब से गुजर सकता है और खौफनाक खतरात मोल ले रहा है। बहुत पुख्ता रवैया नहीं, इसे बड़ा होना है। रोजमर्रा की जिंदगी के आम हालात में यकीन और हकीकत की दुनिया के दरमियान फर्क करने में नाकामी, जैसे कि मसरूफ सड़क पर गाड़ी चलाना मामूल की बात हो सकती है। एक छोटा बच्चा, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी हम 18 साल की उम्र से तवक्को करेंगे। क्या ये हो सकता है कि बुलेट नौजवान ड्राइवर अपनी हकीकी शनाख्त के बारे में गैर यकीनी है कि इसकी खुद की तस्वीर शायद इसके हकीकी वजूद के मुताबिक नहीं है। शायद वो फार्मूला एक रेसिंग ड्राइवर की तारीफ करता है और यहाँ तक कि सोचता है कि वो रेसर है, लेकिन अगर वो रेसर के तौर पर काम करने की कोशिश करता है तो वो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जिसे वो संभाल नहीं सकता और मामलात को मजीद खराब करने के लिए वो रेस ट्रैक के बजाय कारनीश पर अवामी शाहराह पर खेल रहा है। 6.1 नाकिस खुद पर काबू एक द रेट अलामत। 57 पख्तगी का एक और अहम पहलू खुद पर काबू है। जो बच्चे अपना गुस्सा खो देते हैं वो अपनी चिड़चिड़ापन और गुस्से को बेकाबू तरीके से जाहिर करते हैं। वो चीखते हैं, वो लाठी मारते हैं, वो लोगों और चीजों पर जो उनके रास्ते में आते हैं कोड़े मारते हैं। इस तरह के जारिहाना रवैये का एक बेकाबू डिस्प्ले सड़क पर तबाह के नताइज का बायस बन सकता है। ट्रैफिक में, लिहाजा ये जरूरी है कि आप अपनी जलन को हाथ से ना जाने दें, अगरचे आप किसी और के ड्राइविंग के अंदाज को मुकम्मल तौर पर गलती पर समझना काफी हद तक जायज हो सकते हैं। जारहियत आपको एक बुरा ड्राइवर बनाती है, न सिर्फ इस वजह से कि ये ट्रैफिक के माहौल का अंदाजा लगाने की आपकी सलाहियत को मुतासिर करती है बल्कि इसलिए कि यह आपको गैर सोचे समझे फैसले करने की तरफ ले जाती है। और जारहाना रवैया दूसरे ड्राइवरों के साथ तनाज़ा पैदा करता है। एक अच्छे ड्राइवर की एक खुसूसियत यह है कि वो तवील अरसे तक चूकना और तवज्जो मरकूज रखे। दूसरी तरफ, दिन में ख्वाब देखना एक बुरी आदत है जो आपकी तवज्जो ड्राइविंग के तमाम अहम काम से भटकने का बायस बनती है। 164 मुश्तरका ड्राइविंग रवैया और सड़क बशक्रिया 111.1.8 अपने आप को जाने और अपनी ड्राइविंग की महारत को जाने। एक सर्वे में ड्राइविंग लाइसेंस के हामिल नौजवानों से कहा गया कि वो अपने रद्दअमल के लिहाज से अपनी ड्राइविंग की महारतों, गैर मुतवक्के सुकट का मुकाबला करने की उनकी सलाहियत, हंगामी सूरत हाल को कैसे संभालेंगे और उसी तरह खुद इल्म। नौजवान मर्द और खवातीन ड्राइवर खुद को कितने अच्छे मालूम होते हैं। सर्वे से पता चलता है कि नौजवान मर्द ड्राइवर जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस 1 से 3 साल के दरमियान था वो खुद को औसत से बेहतर ड्राइवर समझते थे। ये बहुत मुमकिन है कि नौजवान मर्द ड्राइवर अपनी ड्राइविंग की सलाहियतों को काफी हद तक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इस तस्वुर की तायीद इस हकीकत से होती है कि हादिसात की गैर मुतनासिब तादाद में नौजवान मर्द शामिल होते हैं। उनकी ड्राइविंग की महारत इस रफ्तार के लिए काफी नहीं है जिस रफ्तार से वो गाड़ी चलाना पसंद करते हैं और उनकी महारत के बारे में उनकी राय हादसाती आदादोशुमार के अलमिये के मुताबिक नहीं है। सर्वे ने यह भी जाहिर किया कि नौजवान खवातीन ड्राइवर खुद को मामूली या औसत से कम ड्राइवर मानती हैं। 6.1.9 तजुर्बाकार और नातजुर्बाकार ड्राइवरों के दरमियान फर्क। तजुर्बाकार और नातजुर्बाकार ड्राइवर में वाज़ेह फर्क है। तजुर्बाकार और या तजुर्बाकार ड्राइवर अपने नौआमूज साथियों की निस्बत ज्यादा वसी और मुनज़्ज़म तरीके से अपने इर्द गिर्द के माहौल को स्कैन करते हैं। मिसाल के तौर पर, तजुर्बाकार ड्राइवर दाएं हाथ की वकर को बिल्कुल उसी तरह स्कैन नहीं करता जिस तरह बाएं हाथ वाला। दूसरी तरफ, नातजुर्बाकार या नौजवान ड्राइवर सड़क के मोड़ के साथ ऐसा सुलूक करते हैं जैसे वो सब कम वाव बेश एक जैसे हों। बिल्कुल ये क्यों वाज़ेह नहीं होना चाहिए, हालांकि ऐसा लगता है कि ज्यादा तजुर्बाकार ड्राइवर फितरी तौर पर ये समझते हैं कि बाएं हाथ का मोड़ फितरी तौर पर ज्यादा खतरनाक है। तजुर्बाकार ड्राइवर ट्रैफिक को चलने में ज्यादा मुमकिना खतरात को भी पहचानते हैं, जबकि नौजवान और नातजुर्बाकार ड्राइवर ट्रैफिक के माहौल को जामिद समझते हैं।
तजुर्बाकार ड्राइवर आमतौर पर किसी बुहरान में अपनी गाड़ियों का बेहतर कंट्रोल बरकरार रखते हैं, जैसे अगर इन्हें अचानक किसी गैर मुतवक्के रुकावट से बचना पड़े। उनकी रफ्तार ज्यादा मुस्तकिल होती है, वो कम रफ्तार से तेज होते हैं और इन्हें शाज़ व नादिर ही घबराहट में ब्रेक लगाने पड़ते हैं। नातजर्बाकार और या नौजवान ड्राइवर अपनी गाड़ियों के दाईं तरफ देखते हैं, ये तजवीज़ करते हैं कि वो सड़क पर अपनी पोजीशन के बारे में बिल्कुल यकीन नहीं रखते हैं। मजीद ये कि खतरनाक हालात में रद्दअमल जाहिर करने में इन्हें ज्यादा वक्त लगता है। मुताले से पता चलता है कि नौजवान और नातजर्बाकार ड्राइवर आमतौर पर उन लोगों के मुकाबले में तेज और कम आसानी से गाड़ी चलाते हैं जिन्होंने ज्यादा तजुर्बा हासिल किया है, और उनमें अपनी मुसाबकती जिबिल्लत को बरोए कार लाने का रुझान भी ज्यादा होता है। 1.8 स्वयं को जाने और अपने ड्राइविंग कौशल को जाने। एक सर्वेक्षण में ड्राइविंग लाइसेंस वाले युवाओं से उनकी प्रतिक्रियाओं, अप्रत्याशित स्किड का मुकाबला करने की उनकी क्षमता, आपातकालीन स्थिति का प्रबंधन कैसे करेंगे इत्यादि के संदर्भ में उनके ड्राइविंग कौशल का स्पष्ट मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। आत्मज्ञान। युवा पुरुष और महिला ड्राइवर स्वयं को कितनी अच्छी तरह जानते हैं? सर्वेक्षण से पता चला कि जिन युवा पुरुष ड्राइवरों के पास 1 से 3 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस था, वे खुद को औसत से बेहतर ड्राइवर मानते थे। ये बहुत संभव है कि युवा पुरुष ड्राइवर अपनी ड्राइविंग क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। ये धारणा इस तथ्य से समर्थित है कि दुर्घटनाओं में बहुत अधिक संख्या में युवा पुरुष शामिल होते हैं। उनके ड्राइविंग कौशल उस गति के लिए पर्याप्त नहीं है जिस गति से वे गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, और उनके कौशल के बारे में उनकी राय दुर्घटना के आंकड़ों की त्रासदी के अनुरूप नहीं है। सर्वेक्षण से ये भी पता चला कि युवा महिला ड्राइवर खुद को औसत दर्जे का या औसत से नीचे का ड्राइवर मानती थी। 6.1.9 अनुभवी और अनुभवहीन ड्राइवरों के बीच अंतर। अनुभवी और अनुभवहीन ड्राइवर के बीच स्पष्ट अंतर है। अनुभवी और या अनुभवी ड्राइवर अपने नौसिखिए सहकर्मियों की तुलना में अपने परिवेश को अधिक व्यापक और अधिक व्यवस्थित रूप से स्कैन करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुभवी ड्राइवर दाहिने हाथ के मोड़ को ठीक उसी तरह से स्कैन नहीं करता है जिस तरह से बाएं हाथ के मोड़ को। दूसरी ओर, अनुभवहीन या युवा ड्राइवर सड़क पर मोड़ों को ऐसे लेते हैं जैसे कि वे सभी लगभग एक जैसे हों। वास्तव में ये स्पष्ट क्यों होना चाहिए? हालांकि ऐसा लगता है कि अधिक अनुभवी ड्राइवरों को सहज रूप से एहसास होता है कि बाएं हाथ का मोड़ स्वाभाविक रूप से अधिक खतरनाक है। अनुभवी ड्राइवर भी चलते हुए यातायात में अधिक संभावित खतरों को पहचानते हैं, जबकि युवा और अनुभवहीन ड्राइवर यातायात के माहौल को स्थिर मानते हैं। अनुभवी ड्राइवर आमतौर पर किसी संकट में अपने वाहनों पर बेहतर नियंत्रण बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उन्हें अचानक किसी अप्रत्याशित बाधा से बचना हो, उनकी गति अधिक स्थिर होती है, वे कम तेजी से बढ़ते हैं और उन्हें घबराहट में ब्रेक लगाने की आवश्यकता कम ही होती है। अनुभवहीन और या युवा ड्राइवर अपने वाहनों को दाहिनी ओर देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वे सड़क पर अपनी स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि खतरनाक स्थितियों में प्रतिक्रिया करने में उन्हें अधिक समय लगता है। अध्ययनों से पता चलता है कि युवा और अनुभवहीन ड्राइवर आमतौर पर उन लोगों की तुलना में तेज और कम सुचारू रूप से गाड़ी चलाते हैं जिन्होंने अधिक अनुभव प्राप्त किया है, और उनमें अपनी प्रतिस्पर्धी प्रवृत्ति को लागू करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। 76.1.8 Know yourself and know your driving skill. In a survey, young people with driving licenses were asked to give a frank assessment of their driving skills in terms of their reactions, their ability to counter an unexpected skid, how they would manage an emergency situation, and so on. Self-knowledge. How well do young male and female drivers seem to know themselves? The survey showed that young male drivers who had held a driving license for between 1 and 3 years considered themselves to be better than average drivers. It is very likely that young male drivers overestimate their driving abilities to a considerable degree, a notion backed by the fact that a disproportionately high number of accidents involve young men. Their driving skills are simply not adequate for the speed at which they like to drive, and their opinion of their skills is not in keeping with the tragedy of the accident statistics. The survey also showed that young female drivers believed themselves to be mediocre or below average drivers. 6.1 Emotional maturity. 6.1.10 Elderly drivers. 58 elderly drivers, who have often accumulated many years of experience and are often critical of their own performance, are mostly courteous and considerate, since they like to take it easy on the road. They are usually no more dangerous in traffic than most other road users. However, as a person grows older, changes in physical 114 driving behavior and road courtesy function tend to bring about a corresponding weakness in performance.
Elderly drivers must adapt their driving to their own physical abilities and the state of the traffic to a far greater extent than younger drivers. If possible, they should avoid driving at night and in heavy traffic. This means that unlike inexperienced and young drivers, who tend to overestimate their own abilities, the elderly drivers are seldom involved in single vehicle accidents. Plus, पख्तगी 6 जनवरी 10 बुजुर्ग ड्राइवर 58 बूढ़े ड्राइवर जिन्होंने अक्सर कई सालों का तजुर्बा जुमा किया होता है और वो अक्सर अपनी कारकर्दगी पर तनकीद करते हैं, ज्यादातर शाइस्ता और मिलनसार होते हैं क्योंकि वो सड़क पर आसानी से चलना पसंद करते हैं। वो आमतौर पर ट्रैफिक में सड़क इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक नहीं होते। ताहम जैसे जैसे एक शख्स बड़ा होता है, जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं। 114 ड्राइविंग का रवैया और सड़क पर शाइस्ता फंक्शन कारकर्दगी में उसी तरह की कमजोरी लाता है। बूढ़े ड्राइवरों को अपनी ड्राइविंग को अपनी जिस्मानी सलाहियतों और ट्रैफिक की हालत को कम उम्र ड्राइवरों के मुकाबले में काफी हद तक ढलना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो इन्हें रात के वक्त और भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से गुरेज करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि नातजर्बाकार या और नौजवान ड्राइवरों के बरकस, जो अपनी सलाहियतों का ज्यादा अंदाजा लगाते हैं, बूढ़े ड्राइवर शाज़ व नादिर ही एक गाड़ी के हादसात में मुलव्वस होते हैं। जुमा 1 भावनात्मक परिपक्वता 6.1.10 बुजुर्ग ड्राइवर 58 बुजुर्ग ड्राइवर जिनके पास अक्सर कई वर्षों का अनुभव होता है और जो अक्सर अपने प्रदर्शन के प्रति आलोचनात्मक होते हैं, ज्यादातर विनम्र और विचारशील होते हैं क्योंकि वे सड़क पर आराम से चलना पसंद करते हैं। वे आमतौर पर अधिकांश अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की तुलना में यातायात में अधिक खतरनाक नहीं होते हैं। हालांकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, शारीरिक बदलाव आते हैं। 114 ड्राइविंग व्यवहार और सड़क शिष्टाचार कार्य निष्पादन में तदनुरूपी कमजोरी लाते हैं। युवा ड्राइवरों की तुलना में बुजुर्ग ड्राइवरों को अपनी ड्राइविंग को काफी हद तक अपनी शारीरिक क्षमताओं और यातायात की स्थिति के अनुरूप ढालना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें रात में और भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अनुभवहीन या और युवा ड्राइवरों के विपरीत, जो अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व देते हैं, बुजुर्ग ड्राइवर शायद ही कभी एकल वाहन दुर्घटनाओं में शामिल होते हैं। व्यक्तित्व लक्षण और कुछ प्रकार के बुरे व्यवहार 6.2.1 आवेगी व्यक्तित्व, जो पहले कार्य करता है, बाद में सोचता है, यातायात में लगभग हमेशा जगह से बाहर रहता है। आवेग अक्सर मूर्खता का पर्याय है, जो अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरनाक होने के अलावा चालक को अपने वाहन पर नियंत्रण खोने का कारण बन सकता है। इस प्रकार का व्यवहार बच्चों में आम है। हालांकि यातायात में आवेग केवल खतरनाक है। 6.2.2 बहाने, दूसरों को दोष देना। कुछ लोगों को अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने और जो कुछ हुआ है उसके लिए किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करने की तीव्र इच्छा का अनुभव होता है। इसके बजाय वे बहाने बनाते हैं और वे लगभग हमेशा खुद को उन लोगों के साथ संघर्ष में पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले बहाने बनाकर परेशान किया है। हालांकि इससे भी बुरी बात यह है कि उनमें ड्राइविंग की कुछ बहुत बुरी आदतें अपनाने की भी प्रबल संभावना है। चूंकि ऐसे लोग हमेशा दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, उन्हें ये स्वीकार करने की कोई बाध्यता महसूस नहीं होती कि वे गलत थे और इसलिए उन्हें अपने व्यवहार में बदलाव करने का कोई कारण नहीं दिखता। लंबी अवधि में ये रवैया बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह नौसिखिए को ड्राइवर के रूप में विकसित होने से रोकता है और अनुभव से सीखना और भी कठिन बना देता है। एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना और यह पहचानना आवश्यक है कि सड़क पर आत्म सुधार के लिए हमेशा पर्याप्त जगह होती है। 6.2.3 दमन रोजमर्रा की जिंदगी में और अक्सर ट्रैफिक में ऐसा होता है कि हम अप्रिय विचारों को एक तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। हालांकि तथ्यों को विकृत करने या दबाने के बजाय वास्तविकता को उसी रूप में देखने और अनुभव करने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ ड्राइवर बिना गति धीमी किए चलते रहने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, भले ही वे कम दृश्यता के साथ अंधेरे में गाड़ी चला रहे हों। अन्य लोग आगे निकलने का जोखिम उठाते हैं, हालांकि वे जानते हैं कि वे जो दूरी देख सकते हैं वो बहुत कम है। क्या वे खतरे से अनजान हैं? या क्या उन्होंने सिर्फ एक मौका लेने का फैसला किया है? बेशक अंदर ही अंदर वे जोखिमों से पूरी तरह वाकिफ हैं, भले ही अन्य चीजें, जैसे बड़े मैच के लिए समय पर घर पहुंचना, उस समय अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं। इसे दमन के रूप में जाना जाता है और अधिकांश ड्राइवर समय समय पर इसका अनुभव करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह अक्सर होता है, और चूंकि इससे चालक की खतरे के प्रति जागरूकता कम हो जाती है और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए दुर्घटना दर तदनुसार बढ़ जाती है।
ड्राइविंग 6.2 शख्सियत की खसलतें और बाज कस्म के बुरे सलूक 6.2 0.1 जज्बातीपन मुतासिर किन शख्सियत जो पहले काम करती है बाद में सोचती है ट्रैफिक में तकरीबन हमेशा ही बाहर रहती है। जज्बातीपन अक्सर अहमकानापन का मुतरादिफ होता है जो सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरे की घंटी होने के अलावा ड्राइवर को अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खोने का सबब बन सकता है। इस तरह का रवैया बच्चों का आम है ट्रैफिक में, ताहम बेहिस्सी महज खतरनाक है। 6.2 0.2 बहाने दूसरों पर इल्जाम लगाना। कुछ लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को मोरद इल्जाम ठहराने और जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से इनकार करने की शदीद ख्वाहिश का तजुर्बा करते हैं। इसके बजाय वो बहाने बनाते हैं और वो तकरीबन हमेशा अपने आप को उन लोगों के साथ तनाज़ा में पाते हैं जिन्हें इन्होंने पहले बहाने बनाकर नाराज किया है। ताहम इससे भी बदतर बात यह है कि उनमें ड्राइविंग की कुछ बहुत बुरी आदत को हासिल करने का कभी मौका भी मौजूद है। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, इसलिए वो ये तस्लीम करने में कोई मजबूरी महसूस नहीं करते कि वो गलत थे और इसलिए इन्हें अपने रवैये में तरमीम करने की कोई वजह नजर नहीं आती। तवील मुद्दत में ये रवैया बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि ये नौज़ायदा को ड्राइवर के तौर पर तरक्की करने से रोकता है और तजर्बे से सीखना ज्यादा मुश्किल बना देता है। एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें और इस बात को तस्लीम करें कि सड़क पर खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काफी गुंजाइश होती है। 6.2 0.3 जबर रोजमर्रा की जिंदगी में और अक्सर ट्रैफिक में ऐसा होता है कि हम नाखुशगवार ख्यालात को एक तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं। ताहम हक़ाइक़ को मसखा करने या दबाने के बजाय हकीकत को महसूस करने और तजुर्बा करने की सलाहियत बहुत अहम है। कुछ ड्राइवर हमेशा सुस्त नजर आने के बगैर आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आते हैं, हालांकि वो अंधेरे में कम मरैयत के साथ गाड़ी चला रहे हैं। दूसरों को ओवरटेकन का खतरा होता है, हालांकि वो जानते हैं कि जो फासला वो देख सकते हैं वो बहुत कम है। क्या वो खतरे से बेखबर हैं या इन्होंने सिर्फ एक मौका लेने का फैसला किया है? अंदर की गहराइयों में यकीनन वो खतरात से बखूबी वाकिफ हैं, हालांकि दूसरी चीजें जैसे बड़े मैच के लिए वक्त पर घर पहुंचना उस वक्त ज्यादा अहम मालूम होता है। इसे जबर के नाम से जाना जाता है और ये ऐसी चीज है जिसका ज्यादातर ड्राइवर वक्तन फवक्तन तजुर्बा करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अक्सर होता है और चूंकि ये ड्राइवर की खतरे से आगाही को कम करता है और खतरा मोल लेने के रुझान को बढ़ाता है, उसके मुताबिक हादसे की शरह बढ़ जाती है। 6.2 शख्सियत की खसलतें और बाज कस्म के बुरे सलूक 6.2 0.5 वक़ात 6.2 0.6 खुद का दावा 6.2 0.4 आप कैसा महसूस करते हैं इसके बरकस रद्दअमल की तश्कील। जबकि मगरिबी सकाफत में मिसाली शख्सियत को अक्सर मुतहर्रिक, कारोबारी, खुद मुख्तार और खुद एतमादी के तौर पर पेश किया जाता है, ज्यादातर नौजवान बहुत से मामलात में काफी गैर महफूज है। वो शर्मीली हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर, या कोई गैर दानिशमंदाना काम करने से डरते हैं। एक ही वक्त में दो बज़ाहिर मुतज़ाद ख्वाहिशात को पालना बिल्कुल मुमकिन है, एक तरफ दलीरी से पुरितिमाद जाहिर होना और दूसरी तरफ एक फितरी शर्म और अदम तहफ़्फ़ुज़ के गहरे एहसास का शिकार होना। इंसानी अना कैसे आजमाती है? इस तनाज़ुर को हल करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि एक जिबिलत दूसरी की कीमत पर बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। नतीजाता जारहाना बदतमीजी की बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार होता है। उसी तरह फितरी तौर पर डरपोक अक्सर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने जुर्रतमंद हैं। बहुत से हादिसात इस नफ्सियाती दिफाई तरीक़ाकार की वजह से हुए हैं, जिसे रद्दअमल की तश्कील कहा जाता है। हर कोई बनना चाहता है और तकरीबन हम सभी दूसरे लोगों की तरफ से तारीफ करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ताहम तारीफ की ये जरूरत, जो कि बज़ात खुद एक आम सी बात है, एक सादा लू अपनी काबिलियत पर बहुत ज्यादा मुबालगा आमेज फख्र का बाइस बनती है। मिसाल के तौर पर, एक नापुख्ता मर्द मोटरसाइकिल अपने मुसाफिरों के सामने ये जाहिर करने पर मजबूर हो सकता है कि बतौर ड्राइवर वो एक गैर मामूली काबिलियत का आदमी है। बहुत से लोग अपने आप को साबित करने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, बाज़ औक़ात ये महज वक़ार का मामला हो सकता है, जिसका बुनियादी मकसद दूसरे ड्राइवरों पर बर्तरी का एहसास और ये तसव्वुर है कि सड़क इस्तेमाल करने वालों को उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए। इस तरह के खुद एतमादी का एक और पहलू इस बात पर इसरार करने का रुझान है कि आप हर कीमत पर दुरुस्त हैं। इस रवैये को मुतहर्रिक करना जितना आसान होगा, खुद एतमादी की जरूरत इतनी ही मजबूत होगी जिसका इजहार किया जा रहा है। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हक में है। चैलेंज उठाना और आंख के बदले आंख मांगना महज आपके हादसे का सबब बनने के इम्कानात को बढ़ाता है।
दो व्यक्तित्व लक्षण और कुछ प्रकार के बुरे व्यवहार 6.2.5 प्रतिष्ठा 6.2.6 आत्मपुष्टि 6.2.4 प्रतिक्रिया निर्माण जो आप महसूस करते हैं उसके विपरीत कार्य करना जबकि पश्चिमी संस्कृति में आदर्श व्यक्तित्व को अक्सर गतिशील, उद्यमशील, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी के रूप में चित्रित किया जाता है। अधिकांश युवा कई मामलों में काफी असुरक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, वे शर्मीले हो सकते हैं या कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करने से डरते हैं। एक ही समय में दो परस्पर विरोधी इच्छाओं को मन में रखना काफी संभव है। एक तरफ साहसपूर्वक आत्मविश्वासी दिखना और दूसरी तरफ सहज शर्म और असुरक्षा की गहरी भावना से ग्रस्त होना। इंसान का अहंकार कैसे प्रयास करता है इस संघर्ष को सुलझाने के लिए? अक्सर ऐसा होता है कि एक प्रवृत्ति को दूसरे की कीमत पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। परिणामस्वरूप असुरक्षा आक्रामक अशिष्टता के प्रदर्शन में प्रकट होती है। इसी तरह स्वाभाविक रूप से डरपोक लोग अक्सर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वे कितने साहसी हैं। इस मनोवैज्ञानिक रक्षात्मक तंत्र के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसे प्रतिक्रिया गठन के रूप में जाना जाता है। हर कोई कुछ बनना चाहता है और हम में से लगभग सभी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी सराहना करें। हालांकि कभी-कभी सराहना की यह आवश्यकता, जो अपने आप में बिल्कुल सामान्य है, किसी के अपने कौशल में एक भोलेपन, अत्यधिक अतिरंजित गर्व का मार्ग प्रशस्त करती है। उदाहरण के लिए, एक अपरिपक्व पुरुष मोटर चालक को अपने यात्रियों को ये प्रदर्शित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है कि एक ड्राइवर के रूप में वो असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति है। बहुत से लोगों में खुद को मुखर करने की तीव्र इच्छा होती है। कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी यह केवल प्रतिष्ठा का मामला हो सकता है, जिसमें अंतर्निहित उद्देश्य अन्य ड्राइवरों पर श्रेष्ठता की भावना और यह धारणा है कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए। इस तरह के आत्मा पुष्टि का एक और पहलू इस बात पर जोर देने की प्रवृत्ति है कि आप हर कीमत पर सही हैं। इस व्यवहार को ट्रिगर करना जितना आसान है, आत्मा पुष्टि की आवश्यकता उतनी ही अधिक व्यक्त की जा रही है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है। चुनौती स्वीकार करना और आंख के बदले आंख की मांग करना केवल दुर्घटना होने की संभावना को बढ़ाता है। 116 ड्राइविंग 2.7 Jumping the queue 6.2.8 Reinforcing bad habits. Probability conditioning. Few things are more irritating to a driver who is waiting in a queue, either for signals to change or at a priority junction, than another driver appearing to the left or right and selfishly pushing through gaps to reach the head of the queue, without care for the inconvenience, not to mention danger, caused to others. Not only is this a breach of the traffic law, it is a potential cause of accidents and a bad example to other drivers. It also points to a careless, aggressive personality that lacks consideration for other road users. Do not jump the queue. It is only a matter of a few seconds before you will be on your way again. Unfortunately, learning does not always have the desired effect. Sometimes, in spite of all your efforts, bad habits become the rule. Why is it that so many drivers do not slow down at junctions? Do they not know that driving through a junction without slowing down is dangerous? The answer is that if you regularly pass through a certain junction in your neighborhood and seldom, if ever, meet another car, there is a strong risk that you will become careless. Instead of keeping alert, you speed through the junction, convinced that other cars hardly ever come this way anyway, and in doing so you take a much greater risk than you would otherwise do, with the predictable result that when a car does come, you don't stand a chance. In other words, you tend to adapt your driving habits to the expected frequency that a given event can be expected to occur. This form of learning, which is known as probability conditioning, is insidious, invades your subconscious mind without your knowing and can lead you to develop bad, even dangerous driving habits. 59 You might, for example, have learned that high speeds are not particularly dangerous. Actually, you have driven pretty fast on numerous occasions and have never been involved in even a minor incident. But the fact is that high speeds are dangerous. Speed means risk, and risk leads to accidents. Speed cracks skulls, breaks bones and kills, and you may never get more than one opportunity to find out about it in practice. Driving behavior and road courtesy 117 6.3 The will 7 कतार में कूदना 6.2.8 बुरी आदतों को बढ़ावा देना संभावना कंडीशनिंग कतार में सिग्नल बदलने के लिए या प्राथमिकता जंक्शन पर इंतजार कर रहे ड्राइवर के लिए कुछ चीजें अधिक परेशान करने वाली होती हैं, जबकि दूसरा ड्राइवर बाईं या दाईं ओर दिखाई देता है और बिना किसी परवाह के कतार के शीर्ष तक पहुंचने के लिए स्वार्थी तरीके से धक्का लगाता है। दूसरों को होने वाली असुविधा के लिए खतरे का तो जिक्र ही नहीं। यह न केवल यातायात कानून का उल्लंघन है,
बल्कि ये दुर्घटनाओं का संभावित कारण है और अन्य ड्राइवरों के लिए एक बुरा उदाहरण है। यह एक लापरवाह, आक्रामक व्यक्तित्व की ओर भी इशारा करता है जिसमें अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के प्रति विचार का अभाव है। कतार में मत कूदो, इससे पहले कि आप फिर से अपने रास्ते पर हों, ये केवल कुछ सेकंड की बात है। दुर्भाग्य से, सीखने का हमेशा वांछित प्रभाव नहीं होता है। कभी कभी आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद बुरी आदतें नियम बन जाती हैं। ऐसा क्यों है कि इतने सारे ड्राइवर जंक्शनों पर गति धीमी नहीं करते? क्या वे नहीं जानते कि जंक्शन से बिना गति धीमी किए गाड़ी चलाना खतरनाक है? इसका उत्तर यह है कि यदि आप नियमित रूप से अपने पड़ोस में एक निश्चित जंक्शन से गुजरते हैं और शायद ही कभी, यदि कभी, किसी अन्य कार से मिलते हैं, तो एक मजबूत जोखिम है कि आप लापरवाह हो जाएंगे। सतर्क रहने के बजाय, आप जंक्शन से तेजी से गुजरते हैं, इस विश्वास के साथ कि अन्य कारें शायद ही कभी इस तरफ आती हैं, और ऐसा करने में आप जितना जोखिम उठाते हैं, उससे कहीं अधिक जोखिम उठाते हैं, जिसका अनुमानित परिणाम ये होता है कि जब कोई कार आती है, आपके पास कोई मौका नहीं है। दूसरे शब्दों में, आप अपनी ड्राइविंग आदतों को उस अपेक्षित आवृत्ति के अनुसार अनुकूलित करते हैं जिसके घटित होने की उम्मीद की जा सकती है। सीखने का ये रूप, जिसे संभाव्यता कंडीशनिंग के रूप में जाना जाता है, आपकी जानकारी के बिना आपके अवचेतन मन पर घातक हमला करता है और आपको बुरी, यहाँ तक कि खतरनाक ड्राइविंग आदतों को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 59 उदाहरण के लिए, आपने ये सीख लिया होगा कि तेज गति विशेष रूप से खतरनाक नहीं होती है। दरअसल, आपने कई मौकों पर काफी तेज गाड़ी चलाई है और कभी भी एक छोटी सी घटना में भी शामिल नहीं हुए। लेकिन सच तो ये है कि तेज रफ्तार खतरनाक होती है। गति का अर्थ है जोखिम, और जोखिम से दुर्घटनाएं होती हैं। गति खोपड़ियां तोड़ देती है, हड्डियां तोड़ देती है और मार डालती है, और आपको व्यवहार में इसके बारे में जानने का एक से अधिक अवसर कभी नहीं मिल सकता है। ड्राइविंग व्यवहार और सड़क शिष्टाचार 6.2 0.7 पितार कोदना 6.2 0.8 बुरी आदतों को तक़वियत देना इम्कान कंडीशनिंग एक ड्राइवर के लिए चंद चीजें ज्यादा परेशान किन होती हैं जो कतार में इंतजार कर रहा होता है, या तो सिग्नल तब्दील करने के लिए या तरजीही जंक्शन पर, इससे ज्यादा कि कोई दूसरा ड्राइवर बाईं या दाईं तरफ नजर आता है और बेपरवाह होकर कतार के सर तक पहुंचने के लिए खुद गर्जी से खाली जगहों को धकेलता है। तकलीफ के लिए खतरे का जिक्र न करना दूसरों की वजह से। ये न सिर्फ ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये हादिसात की मुमकिना वजह और दूसरे ड्राइवरों के लिए एक बुरी मिसाल है। ये एक लापरवाह, जारहाना शख्सियत की तरफ भी इशारा करता है जिसमें सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए गौर व फिक्र का फुकदान है। कतार में ना कूदें, ये सिर्फ चंद सेकंड की बात है इससे पहले कि आप दोबारा अपने रास्ते पर आएंगे। बदकिस्मती से, सीखने का हमेशा मतलूबा असर नहीं होता। कभी कभी आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद बुरी आदतें उसूल बिन जाती हैं। ऐसा क्यों है कि बहुत सारे ड्राइवर जंक्शन पर रफ्तार कम नहीं करते? क्या वो नहीं जानते कि जंक्शन से बगैर रफ्तार के गाड़ी चलाना खतरनाक है? इसका जवाब यह है कि अगर आप अपने मोहल्ले के किसी मोड़ से बाकायदगी से गुजरते हैं और शाज़ व नादिर ही अगर कभी दूसरी गाड़ी से मिलते हैं, तो इस बात का कभी खतरा है कि आप लापरवाह हो जाएंगे। चूकना रहने के बजाय आप जंक्शन के जरिए तेज रफ्तारी से गुजरते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं कि दूसरी कारें शायद ही कभी इस रास्ते पर आएं, और ऐसा करते हुए आप इससे कहीं ज्यादा खतरा मोल लेते हैं जो आप दूसरी सूरत में करते हैं। इसके नतीजे में मुतवक्के नतीजा ये निकलता है कि जब कोई कार आती है, आपको मौका नहीं मिलता। दूसरे लफ्जों में, आप अपनी ड्राइविंग की आदत को मुतवक्के तदद्दुद के मुताबिक ढालते हैं जिसकी तवक्को की जा सकती है कि कोई वाकया पेश आएगा। सीखने की ये शक्ल, जिसे प्रोबेबिलिटी कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, आपको जाने बगैर आपके लाशऊरी ज़हन पर हमला आवर हो जाता है और आपको ड्राइविंग की खतरनाक आदतें भी पैदा कर सकता है। 59 मिसाल के तौर पर, आपने सीखा होगा कि तेज रफ्तारी खास तौर पर खतरनाक नहीं है। दरअसल, आपने मुतअद्दिद मौक़े पर बहुत तेज गाड़ी चलाई है और कभी किसी मामूली वाक़ये में भी मुलव्वस नहीं हुए। लेकिन हकीकत यह है कि तेज रफ्तारी खतरनाक है। रफ्तार का मतलब खतरा है, और खतरा हादिसात का बाइस बनता है। रफ्तार से खोपड़ी टूट जाती है, हड्डियां टूट जाती हैं और हलाक हो जाते हैं, और आपको अमली तौर पर उसके बारे में जानने का एक से ज्यादा मौका नहीं मिल सकता। ड्राइविंग का रवैया और रोड बशक्रिया 117 6.3 सीखने की ख्वाहिश और सीखने की जरूरत 6